Hello students, today we started with the topic principle of inheritance and variation. In the class we started the genetics topic, okay? And the name of the chapter is principle of inheritance and variation. As you have already studied this topic in your 10th standard, so let us uh, revise those terminologies first, and then we would be proceeding for the further points in this chapter. Okay, so the very first is heredity. There is the term heredity, and we define heredity as the transmission of characters. The characters like that of the eye color, the height of a person. Okay, all these are the characters. Another word that we use is trait. One and the same thing. Okay, so it is a transmission of the characters and or traits from parents to progeny. Okay, this is how we define heredity. Now, when we come to define inheritance, is it different? Is it same? Say, I would say that hered beside this under this heredity, how is the transmission of the characters taking place from parents to the next generation? How is it happening? Okay, this is happening by the process of inheritance. So I would say inheritance is the process because of which the process because of which heredity occurs. Now, what is the underlying process? In more words, I would say, if I add on this, then I can say it is the transmission of genetic material. As we know, the traits are the expression of the genetic material itself. जो हमारा डीएनए है उसी का एक्सप्रेशन आता है that we see in the forms of characters or the traits. So it is the transmission of the genetic material or DNA from one generation to another. Generation to another. Okay, so hopefully you have got a little idea what is heredity. We define it as the transmission of the characters from the parents to the progeny or the next generation. However, when we talk about the inheritance, then we inconsiderate talk about the transmission of the genetic material, which is actually responsible for the appearance of the characters. Okay, so that you would say it is the pattern, it is the pathway, it depicts the pathway of the genetic traits. कैसे ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है. So we can say in another word that heredity is the heredity is the essence of inheritance, very important part of inheritance.
ठीक है। और कभी कभी हम लोग इन दोनों को वाइस वर्सा भी यूज कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी दैट जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. सो समटाइम्स these two words are used, you can say these words are used vice versa. Okay, now here we go. Next, let us talk about the next things. There are some terminologies that we discussed in the class, and I would be giving you a brief introduction of that here. So it is important terminologies. Before starting the chapter, we should be knowing about these things. Okay, so first terminology is genes. Genes क्या है? ठीक है. It is we define by simple words में कह देते हैं unit of inheritance है. Why do we call it unit of inheritance? So when we talk about this gene at the molecular level, अगर हम इसको molecular level पे देखते हैं तो हमारा genetic material क्या है? DNA. Our genetic material is DNA, and the segment of DNA that is coding that is coding for a particular character जो कि एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है. सो वी कैन से सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड जीन्स. सो एट द टाइम ऑफ मेंडल ने कहा वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर. दैट इज वाई यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज वाई यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. नाउ वी नो there is a term allele, or we can say it is allelomorphs. Now what is this? We have a homologous chromosomes, one from father, one from mother, isn't it? हमने कहा one character has two alternative forms. Two alternative forms. ठीक है. या two contrasting forms. ओके. तो इसको रेस करके थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ मैं. ओके. So it is what are the alleles? Here I would be writing better. ठीक है. Alleles are the alternative forms of a character. Now for example, let us consider one character. हम लेते हैं height को कंसिडर कर लेते हैं हम. ओके. और ये जो हाइट है, चलिए प्लांट की हाइट को कंसिडर कर लेते हैं, स्टेम की हाइट को कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. पी के एग्जाम्पल में ही. तो ये जो हाइट है इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट है. आइदर इट इज टॉल, आइदर इट इज ड्वार्फ और शॉर्ट. ठीक है. नथिंग इज देयर इन इंटरमीडिएट. एलीज क्या कहे गए? एलीज कहे गए अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ये कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं किसी एक कैरेक्टर के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है तो वो पेयर में प्रेजेंट है. ठीक है. लोकेशन भी लगभग सेम होती है. जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो इनकी लोकेशन भी लगभग सेम होती है. दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट एज अ पेयर. ठीक है.
तो इट इज द पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, एंड दीज आर अल्टरनेटिव और वी कैन से contrasting. Okay, so this is all about the alleles or the allelomorphs. Okay, then we discussed about the monohybrid cross. Let us discuss the monohybrid cross. एक बार वो कर लेते हैं. So मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए जिसे कहा जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो क्या था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस? लेट अस चेक दिस आउट. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब वी आर कंसिडरिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम. Now here we are taking one character, that is the stem height. ठीक है, हमने एक प्लांट लिया जो कि टॉल है, एक प्लांट लिया जो कि डॉर्फ है. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी. टॉल एंड dwarfs are the alleles of the height. Number 1 point. Number 2, जो भी ये पैरेंटल ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं ये ट्रू ब्रीड्स थी. क्या मतलब होता है इन ट्रू ब्रीड्स का? ट्रू ब्रीड्स प्योर फॉर्म भी यूज करते हैं हम वर्ड. ट्रू ब्रीड्स या प्योर फॉर्म्स का क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि इनकी कंडीशन होमोजाइगस है. होमोजाइगस कंडीशन मतलब अगर टॉल को मैं टी से डिनोट करती हूँ, टॉल एलील को मैं कैपिटल टी से डिनोट करती हूँ, तो स्मॉल को डॉर्फ को मैं डी से नहीं डिनोट करूंगी बल्कि स्मॉल टी से डिनोट करना पसंद करूंगी. ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ द जेनेटिक्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द होमोजाइगस कंडीशन, इसका मतलब दोनों एलील्स जो हैं वो कैपिटल टी हैं, और अगर डॉर्फ में है तो दोनों एलील्स जो हैं वो स्मॉल टी हैं. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द होमोजाइगस. दोनों एलील्स एक ही होंगी, अलग अलग एलील्स नहीं होंगी. ठीक है, दिस इज द ट्रू ब्रीड्स और प्योर फॉर्म्स का ये नेचर होता है कि ये होमोजाइगस होती हैं. ठीक है, और ये कैसे पाई जाती हैं, कैसे ये बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं फॉर फ्यू जनरेशंस, जब हम इसको सेल्फिंग करवाते हैं. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने देते. वी अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन एंड वी गो फॉर द ऑटोगेमी और वी से सेल्फिंग. तो ऐसी कंडीशन में जब हम जनरेशन टू जनरेशन इसको कराते हैं तो आफ्टर 6, 7, 8 जनरेशन वी गेट ट्रू ब्रीड्स. ठीक है, तो मेंडल ने जो शुरुआत की थी पेरेंटल फॉर्म्स की वो ट्रू ब्रीड्स से की थी. ठीक है, तो ट्रू ब्रीड्स मतलब कि ये जो टॉल दिख रहा है आपका ये एक्चुअली दो एलील्स से बना हुआ है जो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है. ठीक है, सो दिस इज द होमोजाइगस कंडीशन इन द ट्रू ब्रीड्स. नाउ व्हेन वी टॉक कि भाई इनका किया इसने क्रॉस, क्योंकि भाई हमने तो क्रॉस कराया है ना, तो क्रॉस कराने पर हमें जो प्रोजेनी मिलती है वो सारी की सारी ऐसी प्रोजेनी होती हैं जो कि हेट्रोजाइगस होती है. ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू, दिस इज द F1 जनरेशन. एक और पॉइंट आई वुड बी मेंशनिंग ओवर हियर कि ये जो टॉल है, ये जो डॉर्फ है, ये जो एक्सप्रेशंस हो रहे हैं इनको फिनोटाइप कहा जाता है. और ये जो इनके नीचे हमने फॉर्मूला टाइप का लिखा हुआ है, दीज आर द जीनोटाइप. जीन में किस तरीके से आपके प्रेजेंट है. ठीक है, इन F1 जनरेशन हमें हेट्रोजाइगस मिले, प्रोजेनीज जितनी मिली वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस मिली. इनका फिनोटाइप क्या था? इनका फिनोटाइप
टॉल ही था, इनका फिनोटाइप टॉल ही था। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। इसके बेसिस पे दो टर्म्स डिफाइन की गई, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आई विल टेल दिस इन अनदर वीडियो अबाउट दिस। डोमिनेंट मतलब वो ट्रेट जो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हुआ है, उसको कह दिया गया डोमिनेंट है, यानी टॉल डोमिनेंट ट्रेट हो गया। रिसेसिव वो जिसका एक्सप्रेशन आया ही नहीं, हालांकि वो प्रेजेंट है पर उसका एक्सप्रेशन नहीं आया। कहने का मतलब डोमिनेंट ने रिसेसिव को मास्क कर दिया, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन कि हम डोमिनेंट और रिसेसिव मेंडल ने कब डिफाइन किया। मेंडल ने तब डिफाइन किया जब F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद हमारे पास रिसेसिव का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया और सारे के सारे प्लांट्स हमको टॉल फिनोटाइप के मिले। तो होपफुली जो जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, ट्रू ब्रीड्स, हेट्रोजाइगस, these are homozygous, ये टर्मिनोलॉजीज विद दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी ये पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, इट इज जस्ट टिल द F1 जनरेशन तक ही अभी हमने किया इन दिस वीडियो, ठीक है। तो ये मेजर टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी आपको, ओके। सो इसके बाद वाला आई विल बी मेकिंग द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच।